Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and you are doing your study properly. And as you know that we have done our four part of this chapter. It means chapter 5, chapter 1, super senses, your standard 5 EVS. We have done four part. Part 1, part 2, part 3, part 4. All videos I have sent in Pocket Study application. And now here today I am going to start your worksheet. It means which you have to write in your fair notebook also. So listen carefully. ये वर्कशीट आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है, बट जो कुछ भी इसमें ड्रॉ किया हुआ है वो आपको फेयर नोटबुक में ड्रॉ नहीं करना है. जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स यू हैव टू राइट. सो एक्सप्लेनेशन पार्ट इज देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट एक्सप्लेनेशन. Please listen carefully how to do in your fair notebook, because all worksheet you have to write in your fair notebook. Okay, so let's start. Hello students. Now here today I am going to start your worksheet of chapter number 1. Okay, it means chapter 1 super senses. So here our chapter explanation finished. As you know, I have divided into 4 parts that chapter. Okay, I hope you understood part 1, part 2, part 3, part 4. All the parts okay are there in your Pocket Study application. All videos are there, but here worksheet. First of all, listen carefully everyone. Okay, every student, please listen carefully. You have to write this worksheet in your fair notebook. Okay, I hope you are having workbook also of EVS and workbook PDF. I'll send you in Pocket Study application, but here this worksheet you have to write in your fair notebook. One important thing, you no need to draw this picture which is given here, because I mentioned this picture here because of you can understand okay this picture, then after you can give all the answers. But just you have to write like question number 1, choose the correct answer to fill in the blanks. Okay, means this question first of all you have to write. Okay, before starting in your fair notebook you have to write chapter 1, chapter name, super senses and worksheet. क्या लिखोगे? वर्कशीट. ओके, आपको क्या लिखना है? वर्कशीट. वर्कशीट लिखने के बाद आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है हेडिंग वर्कशीट. क्या लिखना है? वर्कशीट. सो नाउ वर्कशीट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट हियर, चूज द करेक्ट आंसर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो विल यू राइट दिस? नाउ सी हाउ टू राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ड्रॉ द पिक्चर, बट you have to write all the questions and fill in the blank. Okay, first of all see here some options are given, and from these options you have to write all the fill-ups. Okay, colors, smell, urine, faintest. Okay, मतलब बहुत हल्का साउंड. सिल्क फॉर्म, नेक्स, एनिमल्स, ईयर्स, ब्लैक, वाइट, snakes, sharper, tiger. Okay, language, endangered, poachers, food, with body parts, 17 to 18 leaves, 6, 48, alert, scan, 3, whiskers. Okay, so I hope you will write from these options. So first here question is given. Okay, don't worry, answers also I'll give you in PDF, but you have to write first of all question and imagine what you have to write in these fill-ups. Okay, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? You can decide. Some animals can hear the dash sound. It means you have to write the answers. Some animals can hear the dash sound. So what is the answer? Don't worry, answer I'll give you. See, first of all question, write it down properly, and answers I mention here, but I'll give you answers. See, in the end all answers are given. So here first answer, let me show. First answer is given. See, first answer has sharper. Okay, this is all the answers. Please mention all the answers are given. Okay, but after
complete all the question, you can write all the answer in fill-ups. Okay, second smell, third silkworm, fourth urine, like that. Okay, so will you write all the answers? See, first क्या था आपका? फर्स्ट ए नंबर है, सम एनिमल्स कैन हियर द साउंड. ओके, शार्पर साउंड. बी, एंड लीव सम डैश ऑन द ग्राउंड. इट मीन्स सम स्मेल ऑन द ग्राउंड. एंड लीव. ओके, क्या ले लेती हैं? एंड्स लीव्स. यहाँ पर जो स्मेल लीव करके जाती हैं ग्राउंड पर, फिर जो ग्रुप आता है एंड्स का, वो एंड्स का ग्रुप पूरा का पूरा क्या करता है? वहाँ से स्मेल फॉलो करते करते अपने होल में जाते हैं. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट एंड सेकेंड. एंड सेम लाइक दैट ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक दैट in your worksheet, and you have to write properly. Some male animals like dash can recognize their female by their. Okay, it means C number. C number is given कि some male animals like can recognize their female by their smell. Okay, it means इसका आंसर क्या है? C. हम लोग वापस इसका आंसर देखते हैं. सिल्कवॉर्म. ओके, सिल्कवॉर्म है इसका आंसर. थर्ड नंबर सिल्कवॉर्म. सी नंबर सिल्कवॉर्म. थर्ड नंबर सिल्कवॉर्म. ओके, सो हियर सिल्कवॉर्म इज़ योर आंसर. यहाँ पर आपको सिल्कवॉर्म लिखना है कि सम मेल एनिमल like silkworm can recognize their females by their smell. Now dogs can make out if another dog has come into their area by the smell of the urine or potty. Okay, it means यहाँ का आएगा urine. आपका क्या आएगा? urine. Fine. So I hope you will write all the fill-ups in your fan notebook. Please neat and clean handwriting में आपको fan notebook में लिखना है. Dogs can make out if another dog has come into the area by the smell of the urine. Okay, next one is what? See, next one, birds move there. See, birds move there. What the answer? Birds move there here. Neck very often. Okay, जो birds हैं अपनी जो neck है, गर्दन है, वो move करते हैं कई बार. Okay, because to see everything. Okay, F number dash cannot see as many colors as we can. Okay, so कौन नहीं देख सकता? What is the answer of F? Let's see what is the answer of F. Animals. Okay, animals is your answer. So F का जो है, so here F will write here F. You have to write F. F में लिखना है animals. Okay, animals you have to write. Now here your answer is color. H, it is believed that animals are walk at night can see things dash and dash. Two filling the blanks is there. Okay, but G number में क्या आएगा? It is believed that animals that walk in the daytime can see some colors. Okay, H, it is believed that animals are walk at night can see things in dash and dash. Will you write from answers? You have to write first of all from answers. There is a link between the size of the animals and their hearing. Okay, there is a link between the size of the animals dash and their hearing. Okay, so answers also are given. I'll tell you. Here in H you will write black and white. Okay, black and white, black and white. Now there are linked animals. Okay, hearing. तो यहाँ पर black and white है आपका आंसर. In I, here ears and their hearing. There are a link between the size of the animals' ears and their hearing. Okay. Now animals that have bigger ears can hear क्या आएगा? Sharper sound. This is not ear, this is ears. Okay, ears. Bigger ears can hear sharper sounds. Okay, so J answer done. Now K में क्या आएगा? Dash feel the vibrations on the ground. क्या feel करवाते हैं vibrations? So animals feel the vibration on the ground. Animals आएगा आपका इसका आंसर. Animals
feel the vibrations on the ground. Okay, all the answers is given in the last. Don't worry, first of all we'll read all the questions. Okay, I, animals have their own dash to communicate. Okay, it means what? So animals have their own, okay, dash to communicate. क्या होना चाहिए उनका आंसर? All the answers are given. Don't worry, first of all we'll read all the questions. Okay, this is worksheet and properly you have to write. Now dash m number m dash is one of the most endangered animals. Okay, dash is one of the most endangered animal. Next n. See, n is what? Your n. Animals that would soon become extinct are called dash animals. So क्या आंसर आएगा इसका n का? If you know you can write, otherwise answers are given in the end. Okay. O, people who kill animals are called hunters. और okay, one more name, एक और नेम था जो मैंने आपको बताया था, you can write here. Okay. Next P. P में क्या दिया हुआ है? Many animals are killed for their dash. Many animals are killed for dash. उनके ईयर्स के लिए या उनकी कई सारी ऐसी चीज़ों के लिए उनको मार दिया जाता है. Now Q. Some birds like kites, eagles and vultures can see dash times as far as we can. Okay, vultures and eagles, kites, ये हमसे कितने टाइम्स ज़्यादा देख सकते हैं दूर का. Also you have to write. Okay, here answers are given. Don't worry. Kites, eagles, vultures can see things from a distance of dash meter. What we can see from a distance of 2 meter. 2 मीटर की दूरी से हम क्या देख सकते हैं? So here will you write this answer? S. Now S. See, S में दिया हुआ है a sloth spends almost कितने आवर्स, मैंने बताया था कितने आवर्स, 18 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली वो स्लीपिंग टाइम में जो रहता है हैंगिंग होके लटक के ट्री पर अपसाइड डाउन. ओके, नीचे की तरफ वो लटका हुआ होता है. अ स्लॉथ स्पेंड्स ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग ऑन अ ट्री अपसाइड डाउन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ टी हियर. टी, द स्लॉथ ईट्स डैश, क्या खाता है? ऑफ द सेम ट्री, उसकी ब्रांचेस खाता है. विच इट लिव्स, जिस पर वो रहता है उसकी ब्रांचेस खाता है. ओके, सो जिस पर वो रहता है उसकी ब्रांचेस खाता है, एज यू नो. So now here next is what? U. Sloth live for about dash years and in that time they move around on 8 trees. उस टाइम पर वो 8 ट्री पर घूम लेता है. कितने ईयर्स तक वो रहता है, कितने ईयर्स तक वो लिव करता है? Sloth live for dash. Everything I mention in videos explanation. So explanation में से आप अच्छे से लिख सकते हो. Otherwise answers also are given here. U and now V. A tiger can see dash times better at night than human beings. I think 6 टाइम या 4 टाइम दिया हुआ था ना, तो you can write the answers. मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की है वीडियोज़ में, ठीक है? तो वीडियोज़ में जितना भी एक्सप्लेन किया है आई होप यू हैव लर्न. तो अ टाइगर कैन सी डैश टाइम्स बेटर एट नाइट देन ह्यूमन बींग्स. ओके, नेक्स्ट थिंग W. Okay, W is given the tigers dash are very sensitive and can sense the movements or vibrations in their air. It means the tiger है dash are very sensitive and can sense the movements or vibrations in the air. ठीक है. Now last इसके बाद है next X में टाइगर्स रोज का जो दहाड़ता है, टाइगर्स जो अपनी वॉइस निकालता है, वॉइस देन कैन बी हियर्ड अप टू कितने किलोमीटर? बहुत किलो. आपने देखा था ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियोस में, उसका आंसर भी दिया हुआ. कितने किलोमीटर से आप उसकी रोर को सुन लेते हो? टाइगर्स रोर कैन बी हियर्ड, ओके, अप टू डैश किलोमीटर्स अवे. वाई? नाउ टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश एनिमल. टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश एनिमल्स. एज यू नो, क्या है वो? यू कैन राइट हियर इफ़ यू नो. आई विल नॉट टेल हियर बिकॉज बेटा आंसर्स आर गिवन बट यू हैव टू गिव द आंसर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब है मस्क डियर. मतलब आपने देखा होगा ना, जिसकी हेयर होते हैं कैट की तरह. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल डैश फ्रॉम इट्स मस्क. ओके, उसको सिर्फ उसकी मस्क के लिए मारा जाता है. किल जस्ट टू मेक अ लिटिल, क्या बनाने के लिए मारा जाता है? फ्रॉम इट्स मस्क. सो A to Z every answers I mention in the answer list, but please you write all the answers
इन फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, नो नीड टू राइट ओनली लाइक ओनली आंसर्स. ओके, आपको मेरी तरह से नहीं लिखना है ऐसे आंसर. जस्ट ये जो आंसर्स है ना, उनको आप फिलिंग द ब्लैंक्स में फील करके लिखोगे. जैसे यहाँ पर ए का है, ए का आंसर आपको ए की जो सेंटेंस है उसमें फील करना है. जेड आंसर, जेड का क्या आंसर है? सी. आपका जेड का आंसर है स्कैन. इसके स्कैन को आपको यहाँ पर फील करना है उसकी लाइन में. ठीक है. सो ये पूरी वर्कशीट है जो प्रॉपरली फील करनी है. तो आंसर्स, आई एम रिपीटिंग आंसर्स हियर. फर्स्ट ए आंसर है शार्पर, बी का आंसर है स्मेल, सी है सिल्कवॉर्म, डी यूरिन. नाउ ई नेक, एफ एनिमल्स, जी गॉड, कलर्स. ओके, एच ब्लैक एंड वाइट. नाउ आई में आएगा ईयर्स, डैश शार्पर. ओके, के में आएगा एनिमल्स, फिर यहाँ एल में आएगा लैंग्वेज. नाउ एम में आएगा पर टाइगर, एन में लिखोगे एंडेंजर्ड, ओ में लिखोगे पोचर्स. हंटर एंड पोचर्स दोनों चीज़ कहा जाता है ना. पी में लिखोगे बॉडी पार्ट्स. ओके, क्यू में लिखोगे 4, आर में लिखोगे 8 में लिखोगे 17 to 18. ओके, एंड टी में लिखोगे लीव्स. यू का आंसर है आपका सी 40, वी है 8, डब्ल्यू विस्कर्स. नाउ एक्स आंसर है 3. ठीक है. वाई का आंसर है एंडेंजर्ड, जेड का आंसर है स्कैन. ओके, अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स. विल यू राइट दिस? नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग स्टूडेंट, सी write the sleeping time. Okay, I explain the sleeping time of all the animals, and in video part 3 में भी आपने पार्ट 3 देखा होगा, उसमें सारे एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम्स दिए हुए थे. बट हियर वन स्लॉथ स्लीपिंग टाइम आपको बताना है. यहाँ एनिमल्स का नाम है स्लॉथ. ओके, हमें उसका स्लीपिंग टाइम बताना है. बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं. ओके, बट स्लॉथ का स्लीपिंग टाइम क्या है, काव का स्लीपिंग टाइम क्या है, पाइथन स्लीपिंग टाइम, जिराफ, कैट. 5 एनिमल्स आई मेंशन एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ स्लीपिंग टाइम ओनली. आपको बताना है. ठीक है. तो आंसर्स ऑल्सो आर गिवन, बट इफ़ यू नो इन द स्लीपिंग टाइम ऑफ काव, पाइथन, जिराफ, कैट, स्लॉथ, you can write. Sloth 17 to 18 hours sleeping time, cow 14 hours sleeping time. Okay, sloth का तो 17 to 18. पाइथन पता है कितने आवर्स होता है? 22 से लेकर 23 आवर्स. इट मीन 24 आवर्स तो होते हैं ना हमारे पूरे डे में. पर डे पाइथन 22 to 23 आवर्स पर डे, वो उसका स्लीपिंग आवर्स है. Okay, so will you write all the sleeping hours I mentioned in the answers, and again I'll repeat also. जिराफ only 30 minutes होता है in a day. You know कि सबसे कम टाइम में जिराफ 15 मिनट्स होता है. ठीक है, 30 मिनट to 15 मिनट समथिंग. ठीक है, तो जिराफ का सबसे कम हुआ. कैट कितने आवर्स होती है? कैट 15 आवर्स होती है. ठीक है, कैट ना 15 आवर्स होती है पूरे पर डे में, और ये तो सिर्फ 30 मिनट्स होता है. जिराफ जो है वो ओनली 30 मिनट्स होता है. ठीक है. सो वर्कशीट में आपको सिर्फ इनके स्लीपिंग आवर्स लिखने हैं. सी आंसर्स आई एम एक्सप्लेनिंग. फर्स्ट आंसर में क्या आएगा? स्लॉट 17 to 18 पर डे. ओके, सेकंड काव 14 आवर्स. थर्ड पाइथन 22 से 23 आवर्स पर डे वो सोता ही रहता है. ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या था? 30 मिनट जिराफ 30 मिनट्स पर डे में सोता है. 15 आवर्स कौन सोती है? कैट 15 आवर्स पर डे में कैट सोती है. ठीक है. नाउ एनिमल्स, सी हियर सम एनिमल्स. ओके, फ्रैक्शन टाइप चार्ट इज गिवन. ओके, ईच एंड एवरी फ्रैक्शन आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सी वन पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, सेकंड 2. हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर? इन काव, इन पाइथन, इन जिराफ एंड कैट. सो डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू काव. हमें ये एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं. नाउ वी हैव टू मेक अ चार्ट. ओके, कैसे बनाना है देखो. फर्स्ट काव इज गिवन नंबर ऑफ शेडेड सेक्टर इज इक्वल टू 2. फाइन. सो स्लीपिंग आवर्स देखना है. स्लीपिंग टाइम ऑफ काव कितना होता है? तो 2 into 2 4 आवर्स. ओके, स्लीपिंग टाइम ऑफ काव इज 4 आवर्स. यू कैन टेल, अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो 4 आवर्स. ओके, सपोज
पाइथन नंबर ऑफ शेडेड सेक्टर इज गिवन। आपको शेडेड में कितने सेक्टर में शेड किया हुआ है, यहाँ जस्ट मेंशन किया हुआ है कि एनिमल्स जो काव है वो शेडेड, आपको शेडेड जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सेक्टर्स उनको काउंट करना है। तो 1 शेड कितने का है 2, तो टोटल कितने शेड हैं देखो पाइथन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 9 जो कितना होता है 18। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट वी हैड टू टेल कि व्हाट इज़ द स्लीपिंग आवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल। ओके, तो शेडेड के अकॉर्डिंग हमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जिराफ में कितना शेड है 2, तो ओनली 2 आवर्स हुआ। ठीक है, सो विल यू डू पाइथन का देखो किस तरह से लिखना है। पाइथन में दिया हुआ है ना नंबर ऑफ शेडेड सेक्टर्स 9 है और 1 सेक्टर का कितना है 2, उसमें जो आपने शेड किया है उसका 2 है। स्लीपिंग टाइम ऑफ द पाइथन 9 × 2 इतनी 18 आवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट ओनली यू हैव टू टेल। ओके, जितना शेड किया उतना बताना है। जिराफ नंबर ऑफ शेडेड 1, तो 1 2 जा 2 मीन्स 2 आवर्स। नेक्स्ट कैट नंबर ऑफ शेडेड, ओके कितने दिए हो नंबर ऑफ शेडेड 6, तो 6 नंबर ऑफ शेडेड आर गिवन। स्लीपिंग टाइम ऑफ कैट 6 × 2 इट मीन्स 12 आवर्स। देखो अभी हम लोग देखते हैं कैट के कितने शेडेड किए हुए हैं 6। देखो 1 2 3 4 5 6, नाउ 2 6 जा 12, तो 12 शेडेड हैं, तो दैट्स वाई वी कैन टेल। अंडरस्टूड दिस वन? ओके फाइन। नंबर ऑफ कैडेड एंड दिस चार्ट यू हैव टू मेक इन योर फेयर नोटबुक प्रॉपरली। यस, ये भी बनाना है, यस ऑफ कोर्स ये भी बनाना है, बस जस्ट ये ड्रॉ नहीं करना है। ओके, पाइथन जिराफ ये सब ड्रॉ नहीं करना है, बट आपको सर्कल करके दिस टाइप ऑफ सर्कल यू हैव टू मेक। शेडेड भी करना है विद द पेंसिल। नाउ नेक्स्ट सी हियर some pictures are given and write the names of the states in which the following wildlife sanctuaries national parks located. It means you have to write the names of the states. किस किस स्टेट्स में जो सेंचुरीज़ हैं नेशनल पार्क्स हैं। ओके, सो आपको उन सब के नेम लिखने हैं। इट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होती हैं जहाँ पर एनिमल्स हैं, ओके और सेफ़ हैं एनिमल्स। सो ऐसे नेशनल पार्क हमारे कई इंडिया के कितने स्टेट्स में प्रेजेंट हैं यू हैव टू राइट। ओके, नाउ सी सम पिक्चर्स आर गिवन, यू कैन सी। ओके, beautiful pictures are given, animals are there, wildlife it means wild animals are there. So here you have to write names. I mention all the answer, but first of all you have to write in A Jim Cobat National Park in one video. Okay, I already mentioned the name of the state, so you have to write here in your fair notebook. Okay, Bandipur Sanctuary, where is it? You have to write. All the answers are given, don't worry. Okay, first of all questions are there. Ghana Bird Sanctuary, गिर वाइल्ड सेंचुरी, एज यू नो ये तो आपको सबको पता है, ये कहाँ है गुजरात में। ओके, फिर है हजारीबाग नेशनल पार्क। ओके, एंड एफ है कन्हा नेशनल पार्क, फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये सारे आंसर्स आपके दिए हुए हैं, डोंट वरी। ओके, बट यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक प्रॉपरली। सो विल यू राइट इन योर फेयर नोटबुक? ठीक है, चलो नेक्स्ट सी, ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं सेंचुरीज़ हैं उन सब के नेम्स आप लिख लोगे। वन मोर थिंग इन योर वर्कशीट, एंड वर्कशीट आपको अपनी फेयर नोटबुक में ही लिखनी है। ओके, नेक्स्ट है मधुमलाई सेंचुरी। ओके, मधुमलाई सेंचुरी ये भी कहाँ पर है वो भी आपको नेम मेंशन है। ठीक है, आंसर्स में सब दे रखा हुआ है। पेरियार सेंचुरी, वेयर इज़ इट? फिर है श्री सलाम टाइगर रिजर्व। ओके, श्री सलाम टाइगर रिजर्व। फिर है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क ऑल्सो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सुंदरबन ऑल्सो। सो all answers I'll tell you, but you have to write first of all like this, don't need, okay, your pictures you have to make, no need to draw the pictures of the animals which are given in this picture, but just आपको क्या करना है, only
इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, एंड क्वेश्चन क्या लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स। ओके, जो फर्स्ट मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था वो क्वेश्चन लिखना है। फ्रेंड्स, ऑल द आंसर्स आर गिवन। ओके, हियर आंसर्स, okay, of that states names. So these are the state names, please mention in your fair notebook. First, it's उत्तराखंड। ओके, फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। ए। बी है कर्नाटका। ओके, बी है कर्नाटका। सी, इट्स राजस्थान। ओके, जो सेंचुरीज के नेम दिए हैं, एंड यू हैव टू राइट स्टेट्स नेम। सो दिस इज राजस्थान। नेक्स्ट, गिर। ओके, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। नेक्स्ट, ई नंबर। ओके, झारखंड, जो नेक्स्ट है वो झारखंड में है। एफ, दिस इज़ इन मध्य प्रदेश, मीन्स एमपी, क्या बोलेंगे उसको, एमपी। असम, ओके, असम में है। नेक्स्ट, जी, आंसर इज जी। एच में है कर्नाटका एंड केरला, कर्नाटका एंड केरला। ओके, so all answers are here, please write it down in your pen notebook. All the states name you have to write as you know. Next, I में है केरला। देन जे है आंध्र प्रदेश। ओके, जे में आएगा आंध्र प्रदेश। लास्ट के, वेस्ट बंगाल। के में क्या है, वेस्ट बंगाल। ओके, सो लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। दिस इज योर वर्कशीट स्टूडेंट, सो प्लीज़ प्रॉपरली राइट इन योर फेयर नोटबुक, नीट एंड क्लीन इन हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। ओके, एंड इन जूम लेक्चर आई विल चेक, एंड वेन एवर योर नोटबुक सबमिशन विल बी देयर, यू हैव टू सबमिट योर कंप्लीटेशन। ओके, वर्कबुक, इट मीन्स सॉरी वर्कशीट। ओके, सो वर्कशीट आपको कंप्लीट करके रखनी है पूरी तरह, ताकि जब भी सबमिशन हो तब सबमिशन के टाइम पर आप सबमिट कर सको, ठीक है। तो चैप्टर 1 वर्कशीट इज़ देयर। Now students, here one more thing in your worksheet, you no need to draw this figure of tiger, just you have to write questions and answers, okay, in your fair notebook properly. Okay, just mention the heading, okay, answer the following questions on tiger, and you have to write just first of all question and answer. Okay, so one by one question and answer you have to write. Okay, not only directly all question you have to write, but first you have to write question, then answer, then question, then answer. But here first of all I'll explain all the questions, then answers I'll give you. but आपको इस वर्कबुक में से, इट मीन्स वर्कशीट में से देख के अच्छे से पहले क्वेश्चन लिखने हैं, फिर आंसर्स। बट मैंने सारे क्वेश्चंस पहले एक साथ लिख दिए हैं, बिकॉज आपको सारे क्वेश्चंस पता चल जाए, देन आप उसका आंसर लिख सकें, ठीक है। सो विल यू राइट प्रॉपरली। Now see, first you can see this tiger is given. All the questions are based on this tiger. सारे जो questions हैं वो tiger पर बेस हैं। First question, see, what helps a tiger to move in the dark? रात के अंधेरे में टाइगर को मूव करने के लिए, टाइगर जब मूव होता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए किस चीज़ की हेल्प लगती है। इट मीन्स टाइगर को कौन हेल्प करता है डार्क में मूव करने के लिए, अंधेरे में मूव करने के लिए। व्हाट हेल्प्स टाइगर टू मूव इन द डार्क। फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टूड, आंसर्स आई विल गिव यू, डोंट वरी। सी, दिस इज योर आंसर, लुक एट दिस प्रॉपरली। आंसर इज व्हाट, द रिफ्लेक्टिव लेयर। ओके, द रिफ्लेक्टिव लेयर एट द बैक ऑफ देयर रेटिना reflects the small amount of light and make it clear to see. It means जो reflective layers होती है, it means suppose their reflective layer at the back of their retina. It means उनकी जो eyes होती है वहाँ पे एक reflective लेयर होती है। सपोज जैसे आपकी मिरर है, ठीक है, मिरर पर आप किसी भी लाइट को फोकस करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर बैक होगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी बट रिफ्लेक्ट होगी। वो लेयर जो होती है रिफ्लेक्टेड लेयर एट द बैक ऑफ देयर रेटिना, उनकी रेटिना के बैक साइड पर होती है, जो रिफ्लेक्ट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, एक लाइट की छोटी सी अमाउंट रिफ्लेक्ट करती है
और वही उसको क्लियरली देखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि हमारी आइज़ सब कुछ देख पाती है प्रॉपरली, बट जो टाइगर की आइज़ है ना, सो ये रिफ्लेक्टिव लेयर्स होती है जो कहाँ पर होती है, बैक ऑफ देयर रेटिना, उनके रेटिना के बैक साइड में, ठीक है। सो वही चीज़ उनको हेल्प करती है नाइट में सब कुछ देखने के लिए। अंडरस्टूड फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन विल डू बी नंबर। हाउ कैन अ टाइगर नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स ईयर, ओके, एरिया, सॉरी। आप कैसे जान पाता है टाइगर कि उसके एरिया में कोई और टाइगर है? आई एक्सप्लेन इन वीडियोज़ कि टाइगर जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, बिकॉज ऑफ इट, ओके, they can feel कि another tiger is there in their area. It means how can tiger know if there is another tiger in its ear? Okay, so answers will give you. क्वेश्चन समझ में आया? बी नंबर, टाइगर को कैसे पता चलता है कि उसके एरिया में कोई और टाइगर है? नो, बी नंबर आंसर सी, it uses the smell of the scent of unfamiliar tiger. Okay, it uses the smell of the scent of unfamiliar tiger. It means what? See, scent का मतलब मैंने आपको समझाया था। scent means उनकी जो स्मेल होती है, सुगंध होती है ना, ओके। सो जो टाइगर्स होते हैं वो स्मेल का यूज़ करते हैं अनफेमिलियर टाइगर को पहचानने के लिए, ठीक है। किसका स्मेल, जो खुशबू होती है किसी और एनिमल की, उसका यूज़ करके वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कोई और टाइगर है। इट मीन्स अनजान टाइगर की स्मेल से वो लोग पहचान लेते हैं। सो इट यूजेस द स्मेल ऑफ द स्कैंट, इट मीन्स उनकी जो सुगंध होती है, उनकी जो स्मेल होती है, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वो पहचान लेते हैं कि उनके एरिया में कोई टाइगर आया हुआ है, ठीक है। नाउ सी नंबर क्वेश्चन विल डू सी, क्वेश्चन नंबर 3, इट मीन्स सी, अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प। आपको रीज़न देना है, व्हाट इज़ द रीज़न, ओके। ए नंबर डन, बी नन, ओके। थर्ड, आपको रीज़न देना है, टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प, गिव मी द रीज़न। सो रीज़न हम देंगे कि उनकी हियरिंग जो है, सेंस ऑफ हियरिंग कितना शार्प क्यों होता है। नाउ आंसर, टाइगर्स कैन हियर स्मॉल साउंड्स एज इट एज विस्कर्स एंड हेयर एट ईयर्स। इवन पता है आपको, जैसे आप खुसफुस करते हो, विस्करिंग करते हो, वो तक उनको पता चल जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को मूव करोगे या कोई भी एनिमल थोड़ा मूव करेगा तो उन्हें पता चल जाता है। इवन हेयर एट ईयर्स, ओके, उनके जो ईयर्स होते हैं, उनके आसपास जो हेयर होते हैं, अगर वो भी थोड़ा मूव करेंगे ना, तो छोटा भी स्मॉल साउंड्स भी उनको पता चल जाता है, वो सुन लेते हैं। उनका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत शार्प होता है। तो दिस इज़ द रीज़न यू कैन राइट, टाइगर्स कैन हियर स्मॉल साउंड्स एज इट has whiskers and hair at ears. Okay, understood students all the question answer? So please write it down, all the question answers from this worksheet. You have to write in your fan notebook. Again I am telling, properly you have to write. First of all heading you have to mention, then answers, okay, question and answer, question and answers, okay.